the second bracket, you see in the formula of time of flight, there is only one. One is in the second bracket. That means in the formula of time flight, no second bracket exists, in fact, in reality. And in case of R, this is U subscript X. What is U subscript X? That is the horizontal component of initial velocity U. What is horizontal component? Ux is equal to U cos theta. Where theta is what? Theta is the angle of projection with respect to horizontal. And let's talk about the another bracket of altitude formula. That is U subscript Y upon 4. U subscript Y upon 4. This is U subscript Y upon 5. If you multiply 5 and 4, these two becomes 20. And 20 at the moment can be replaced by twice gravity. Okay. Now student can ask me, sir, why are you telling this 25 by 2? Let me tell you. First of all, the formats of the formula which I have told you is much simpler than the bookish formulas. But I would like to convert it into the bookish formula also. For example, if I take this formula time of flight, you see time of flight can be written as U subscript Y upon 5. U subscript Y means U sin theta, and 5 can be replaced by gravity upon 2. So further simplification, give you time of flight. 2 goes on the numerator side. So time of flight becomes 2U sin theta by gravity. This formula you find in the books, but I suggest you to remember this formula. Student says me, sir, why to remember your formula? Why not to remember book formula? The thing is, when I will write the other two formulas in the bookish form, you will get very much confused formulas. Let me convert this my formula, these two my formulas into the bookish format. Just see carefully. This is uy and uy. It becomes uy square. Uy square means this. U sin theta overall square. So this becomes u square sin square theta. And because of this 5 into 4, that is 20. 20 can be replaced by twice gravity divided by 2g. Now you see just carefully how confusing this formula is with how much this confusing formula, very much confusing formulas with respect to each other. If you remember my formulas, they are not confusing. Numerical can be solved by these my formulas as well as from the bookish formulas. बेटे आर यू लिसनिंग मी मेरे को आपका हाँ स्टिल हो गया था ओके वन फॉर्मेट और let's talk about r u subscript y by 5 u subscript y can be written as what u sin theta 5 can be represented by gravity upon 2 and u subscript x is equal to u cos theta. If you remember it that 2 goes upside and there becomes a formula 2 sin theta cos theta. If you club them, compact them, then it becomes this formula. Which formula? Let me change the color. Let me write here. Look here. Sin theta cos theta and 2 upper. This becomes sin 2 theta. And one more thing. U here. It becomes u square and in the denominator it is gravity. It is square. This is the formula of horizontal range. Now just see these three formulas better, which I have written in the box loop. This formula, this formula, this formula. Very much confusing formulas, which you people are supposed to cram. These are very much confusing formulas. They can also be used for the solving numericals, but my formulas are also useful for solving numericals, but they are comparatively much easier to remember. How to remember? First brackets in all the three formulas is same. How much? U subscript y by 5. Second bracket is different. Here it is U subscript y by 4. Here it is only U subscript x.
Here it is, third bracket is only 1. At the same time, you remember ux is equal to u cos theta, uy is equal to u sin theta, twice gravity is equal to 20, gravity upon 2 is equal to 5. So all these formulas you should write immediately now. Then only we will be able to solve the numericals. I am just ticking them. एक आपको ये लिखना है बेटे, एक आपको आर का फार्मूला लिखना है ये वाला, जिसको मैंने सर्कल में डाल दिया, और एक ई का फार्मूला बेटे, और एक ये twice gravity can be replaced by 20 and gravity upon 2 can be replaced by 5, और एक ये बॉक्स अप u और uy की वैल्यू। शाबाश, जल्दी से ये पांचों फार्मूले लिख लो, फिगर आपका बना हुआ होना चाहिए। ये है ओब्लिक प्रोजेक्टाइल के पॉइंट्स। सिंपलेस्ट मेथड टू रिमेम्बर दिस, आपको किसी बुक में इस फॉर्मेट में नहीं मिलेंगे फार्मूले आसान वाले। ये मैं ऐसे क्यों बना के देता हूँ, क्योंकि मेरे को सालों साल हो गए पढ़ाते हुए बेटे, 27 साल के आसपास हो गया। तो पिछले साल के बच्चे क्या गलती करके आते हैं तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ और आने वाले लेक्चर्स में इनकॉर्पोरेट करता हूँ ताकि नए वाले बच्चे गलती ना करें। ठीक है, तो मैंने बुक वाले टफ फॉर्मेट्स का इजी फॉर्मेट बना के बताया। अब मैं इनको इरेज करके आगे चलूंगा। और एक बात और, जो भी हमें असाइनमेंट के अंदर और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत पड़ी तो वो मैं आपको साथ के साथ वहां पर बना दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स ओपन दी असाइनमेंट। प्लीज पुल आउट योर असाइनमेंट। शाबाश, हरी अप। ये फॉर्मूले रह ना जाए बेटे, गलती से भी फिगर बनाना ना रह जाए। फिगर बना लिए सभी बच्चों ने? शाबाश, गोल्डन चांस। समझना है मेरे मेरे सब्जेक्ट में, फिजिक्स के सब्जेक्ट में इतने साल एक्सपीरियंस टीचर मिलना बहुत बहुत रेयर होता है बेटे, इसलिए आपने अच्छे से सीखना है मेरे से सब कुछ। तो अब हम बढ़ने लगे हैं असाइनमेंट पे। प्लीज बोलो। व्हाइट बोर्ड। ये निकाल ब्लैक शाबाश बेटे, दिस इज योर असाइनमेंट। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, एक प्रोसीजर रहेगा, आप अपनी चॉइस ऑप्शन भी चूज करोगे। मान लो आपका सेकंड ऑप्शन है तो सभी बच्चे 2 फिंगर्स खड़ी करेंगे। अगर किसी बच्चे का थर्ड चॉइस है तो 3 फिंगर खड़े करेंगे, ताकि मेरा इंटरएक्टिव बन सके कि पता लग सके मेरे बच्चों को खुद क्या जवाब दे रहे हैं और टीचर क्या जवाब दे रहा है। लेट मी टेल यू द फर्स्ट क्वेश्चन। First question: a body is projected into the air from the ground at an angle to the horizontal. On reaching the highest point above the ground. देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूं अपने बच्चों को। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटे। क्वेश्चन का मीनिंग यह है कि कह रहा है कि ये एक ग्राउंड है, यहां से मैंने सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बना के
और u वेलोसिटी से बॉडी को फेंक दिया। कहता प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा, हाईएस्ट z पॉइंट पर, जीनथ पॉइंट पर, तब इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही है, ये आपने बताना। इट्स वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। Second, its acceleration is zero, velocity is not zero. Both velocity and acceleration are not equal to zero. Both velocity and acceleration are not are equal to zero. देखो बेटे ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये है कि बॉडी कहीं भी चली जाए, यहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए, यहाँ चली जाए, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा कि नहीं लगेगा बेटे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये तो कभी भी जीरो नहीं होगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब बॉडी टॉप पर चली जाए, जब बॉडी टॉप पर चली जाए बेटे, उस वक्त उसका, देखो मैं कंपोनेंट ड्रा करके दिखाता हूं। अगर बॉडी यहां पर हो तो वेलोसिटी इधर को होती है अलोंग टेंजेंट। अगर बॉडी यहां पर हो तो वेलोसिटी इधर को होती है, राइट। तो अगर बॉडी यहां पर है तो इसके ऊपर जो टेंजेंट होगी वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में वेलोसिटी होगी। एक बात और याद रखना, जब वेलोसिटी टेढ़ी हो, ना तो हॉरिजॉन्टल हो ना तो वर्टिकल हो, टेढ़ी हो, तब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है। लेकिन जब बॉडी टॉप पर पहुंच गई तो सारी की सारी टेंजेंट ग्राउंड के पैरेलल होगी। जब पूरा वेक्टर ही पैरेलल हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो। तो टॉप के ऊपर वेलोसिटी जीरो नहीं है, उस वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। यहां पर कंपोनेंट की बात ही नहीं करी, तो ओवरऑल वेलोसिटी वो जीरो बना रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हमने। इसका मतलब है टॉप के ऊपर जाकर वेलोसिटी भी जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है। बताओ कौन सी ऑप्शन चूज करोगे? शाबाश। व्हाट इज योर ऑप्शन? बेटे फिंगर खड़ी करो ना, उसके हिसाब से अभी तो सिखाया आपको, एक फिंगर या दो या तीन। व्हाट इज योर ऑप्शन? Girls, why are you looking back? Find your option. What is the option? दोनों जो चीजें नॉन जीरो हैं, कौन सी ऑप्शन पिकअप करोगे? थर्ड ऑप्शन, शाबाश। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन है, बहुत अच्छे। क्योंकि किसी भी जगह पर वो चले जाए, ग्रेविटी तो लगनी लगनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, ठीक है, उसी को उसने एक्सेलरेशन बोला हुआ है। और टॉप के ऊपर अगर वो पूछ लेता हमसे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो, तो हम यस करते, लेकिन उसने तो पूरी वेलोसिटी ही जीरो कर दी, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है। यहां पर एक मेमोरी टूल याद रखना, अगर कोई वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, और अगर कोई वेक्टर खुद ही वर्टिकल हो तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होता है। लेकिन अगर कोई वेक्टर टेढ़ा हो, टिल्टेड हो, नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी जीरो नहीं होएगा, इतना होएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट भी जीरो नहीं होएगा, वो इतना होएगा। अगर टिल्टेड पोज में कोई वेक्टर होता है ना बच्चे, तो वर्टिकल कंपोनेंट भी नॉन जीरो, हॉरिजॉन्टल भी नॉन जीरो। ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल हो तो वर्टिकल कंपोनेंट जीरो, अगर वेक्टर वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल जीरो। और हमारा यहाँ पर क्या था? वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है? छोटी क्लासों में पढ़ा है, सर्कल से टच करती हुई लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो इसलिए टॉप पॉइंट पर मैं जब वेलोसिटी की डायरेक्शन देखूंगा तो टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो टेंजेंट बन गया हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सारी की सारी है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो, ना कि सारी वेलोसिटी जीरो हुई, तो उसने कंफ्यूज करने के लिए हमें बोल दिया कि वेलोसिटी जीरो। तो समझदार बच्चा कहेगा ना ना सर पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं है, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, इसने तो पूरी वेलोसिटी जीरो लिख रखी है, इसलिए दोनों ही ये नॉन जीरो हुए, एक्सेलरेशन भी और वेलोसिटी भी। हम सी ऑप्शन को पिकअप करेंगे। सारा क्वेश्चन मैंने रिवाइज कर दिया। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। रीड करो, एक और रीड करो, हरी अप।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में है, ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए कांस्टेंट स्पीड, व्हाट एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसीडरेशन? द बॉम्ब falls to the exhaust directly below, falls to the behind the airplane, falls to the other head of the airplane, flies along the aeroplane. कौन सा क्वेश्चन होगा इसमें से? देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो बेटे। ऐसे एक एरोप्लेन है, ठीक है, मान लो, ध्यान से सुनो, मान लो भारत की पाकिस्तान से वार लग जाती है और हमारा ये एयरफोर्स का प्लेन है, ठीक है, एयरफोर्स का प्लेन है, तो नीचे हमारे जंगल में आर्मी के लोग हैं, तो उन्होंने मैसेज पहुंचाया कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ खाना पहुंचाया जाए, अगर हमारे शरीर में एनर्जी आएगी तभी लड़ेंगे हम। तो एयरफोर्स वाले फूड के पैकेट्स लेकर आते हैं और नीचे आर्मी के सोल्जर्स को गिराते हैं। अब वो कहते हैं जब यहां से फूड का पैकेट गिरा एरोप्लेन से, तो आप ये बताओ कि वो फूड का पैकेट यहां से इन्होंने छोड़ा, वो इसके नीचे यहां गिर जाएगा, ये, और या फिर यहां गिरेगा, या फिर एरोप्लेन आगे निकल जाएगा और यहां पीछे गिर जाएगा? इन तीनों में से कहां पर होएगा? ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन, रीड दी ऑप्शंस। व्हाट इज योर ऑप्शन? फिंगर खड़े करो, आइदर वन फिंगर और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, अंदाजा तो लगाओ, कुछ तो अंदाजा लगाओ, यहाँ से फूड पैकेट गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? तो बच्चे कह रहे हैं सेकंड, सेकंड कह रहे हैं बेटे। ध्यान से सुनो, अब मैं इसका आंसर देता हूं। जब वो एरोप्लेन से फूड पैकेट छोड़ेगा ना यहाँ पर पिंक कलर वाला, तो एरोप्लेन वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली और फूड पैकेट एरोप्लेन का पार्ट था, तो जिस वेलोसिटी से ये एरोप्लेन जा रहा था उसी वेलोसिटी से फूड भी हॉरिजॉन्टली जा रहा था। जैसे एरोप्लेन से ये फूड पैकेट छूटता है तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट के मुताबिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के मुताबिक यहाँ गिरेगा, लेकिन इतने में ये एरोप्लेन इस येलो वाली पोजीशन से निकल के आगे, नहीं ग्रीन वाली पोजीशन से निकल के येलो वाली पोजीशन पे चला जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो आप कहोगे कि ये फूड पैकेट नीचे गिरेगा लेकिन एरोप्लेन के पीछे गिरेगा और पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी बनाते हुए ये ऐसे जमीन पे गिरेगा। ऐसे मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ओके, उसमें बॉडी पहले ही ऊपर उठी होती है, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है। लेकिन जो हमने ये वाला मोशन होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल से किक लगाई और यहां पर जाकर गिरी, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होती है। दोनों ही प्रोजेक्टाइल मोशन है, और ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसका आंसर हुआ बेटे बी ऑप्शन, सेकंड। तो फूड पैकेट विल बिहाइंड, देखो ये यहाँ पर रहेगा, एरोप्लेन आगे निकल जाएगा, ये एरोप्लेन से पीछे ही गिरेगा, लेकिन जिस रास्ते को फॉलो करेगा वो स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं गिरेगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं ऐसे गिर जाएगा ना, बहुत से बच्चे सोचते हैं ऐसे गिर जाएगा, नो, क्योंकि वो फूड पैकेट एरोप्लेन का पार्ट था, इसलिए उस फूड पैकेट की भी वही वेलोसिटी थी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी थी, इसलिए जैसे ही एरोप्लेन से वो अलग होता है तो उसी वेलोसिटी से जाता है, लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो नीचे को आता जाता है, ऐसे गिरेगा। बट समझ आया बेटे? इफ यस प्लीज वेव योर राइट हैंड, वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके, मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। A man throws a ball from one end to the other end of the ship on its deck. The ship is moving at uniform velocity. The trajectory of the ball is seen by a boy on the deck and another boy on the ground.
They will observe what? They will observe what बेटे? थर्ड क्वेश्चन। अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटे। यहां पर एक शिप है और ये उसके ऊपर समझ लो उसका डेक है, ठीक है। अब इस डेक के ऊपर यहां से एक बंदे ने फुटबॉल को किक लगाया, वो यहां पर गिरा, राइट। तो एक लड़का यहां से खड़ा होकर देख रहा है उसको, वन ऑब्जर्वर, और दूसरा ऑब्जर्वर इधर जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है। मान लो ये वाला ऑब्जर्वर फीमेल है और वो मेल ऑब्जर्वर है, ये फीमेल ऑब्जर्वर, ओके। अब ये कौन सा खड़ा है? ये बाहर खड़ा है शिप से, और मेल ऑब्जर्वर शिप के ऊपर खड़ा है। अब वो कहता है कि दोनों दोनों लोगों को जो वर्टिकल हाइट है और हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्या वो बराबर मिलेगी या सेम अलग अलग मिलेगी? है बेटे, इसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये वाली चीज होती है वर्टिकल रेंज, हाइट, और कहां से बॉडी फेंकी, कहां कर गिरी, इतने स्ट्रेट लाइन गैप को बोलते हैं, आर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, एच को बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। कहता मेल और फीमेल ऑब्जर्वर्स के लिए क्या ये दोनों सेम होंगे या अलग अलग होंगे, या कौन सी ज्यादा होगी, कम होगी? क्वेश्चन, ऑप्शन चूज करो अपना। व्हाट इज योर ऑप्शन? रीड दी ऑप्शंस बेटे। क्वेश्चन समझ आ गया, वो ऑप्शन तो पढ़ो एक बार। रेज योर फिंगर। याद रहे ये शिप भी चल रहा है इधर को कांस्टेंट वेलोसिटी से, शिप भी चल रहा है। अब सुनो ध्यान से, नहीं आंसर दे पा रहे बेटे, ध्यान से सुनो। अगर इन दोनों ऑब्जर्वर्स के देखा जाए इसके हिसाब से, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो फुटबॉल उनको बराबर की ऊंची जाती हुई दिखाई देगी। लड़के को भी उतनी ऊंची फुटबॉल जाती दिखाई देगी, और बाहर खड़ी हुई लड़की को भी उतनी ऊंची जाती दिखाई देगी, यानी एच तो सेम रहेगा। लेकिन अब बच्चा पूछता है एच क्यों सेम रहेगा? क्योंकि शिप का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है। पर हॉरिजॉन्टल रेंज के मामले में देखो, जो तो लड़का शिप के ऊपर खड़ा है उसके लिए तो हॉरिजॉन्टल रेंज उतनी ही होगी जितना मैंने अभी अभी आपको हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला बताया, क्योंकि वो लड़का उसी शिप का पार्ट है। लेकिन लड़की जमीन पर खड़ी है, और लड़की जमीन पर खड़ी है तो उसको लगता है कि एक तो फुटबॉल इतनी दूर जा रही है, ऊपर से शिप भी आगे को जा रहा है, तो इस लड़की को जो हॉरिजॉन्टल रेंज लगेगी ना, गर्ल के लिए, गर्ल को जो हॉरिजॉन्टल रेंज लगेगी वो ज्यादा दिखेगी, मोर दिखेगी। क्यों? क्योंकि लड़की को क्या दिखेगा, एक तो फुटबॉल अपनी स्पीड से जा ही रही है शिप के ऊपर, और दूसरा शिप भी तो आगे जा रहा है और लड़की खुद जमीन के ऊपर खड़ी हुई है। तो लड़की के लिए दो वेलोसिटीज होगी, एक तो प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और शिप की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों ने मिलकर फुटबॉल को किक लगाई गर्ल के लिए, तो इसको हॉरिजॉन्टल रेंज ज्यादा मिलेगी। इधर देख लो बुढ़िया, आगे देख लो। जब टीचर पढ़ा रहा हो तो कमरे में कौन एंटर करता है उसको नहीं देखना होता। और वर्टिकल हाइट जो होती है वो दोनों बच्चों को सेम दिखेगी, मेल ऑब्जर्वर को भी फीमेल को भी। तो इसका ऑप्शन आएगा थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखो, रीड दी थर्ड ऑप्शन। क्या रीड? Why the girls are going? स्टूडेंट्स कैसे चले गए हैं? बेटे माइक आकर बताओ ये बच्चे अपने आप कैसे चले गए, अदरवाइज मैं प्रिंसिपल को कॉल करूंगा अभी।
ये अपने आप कैसे चलेंगे बच्चे? Sir, actually they have been called over there. अच्छा सर, आपकी परमिशन से गए, ओके थैंक यू। मेरे को आप दिख नहीं रहे थे सर, एक्चुअली कैमरे से दूर हो ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटे, शाबाश। लेट्स मेक द 4 ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, सभी बच्चे एक बार रीड करो। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड इनटू एयर ऑन रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। इनमें से कौन सी चीज सही है? देखो, शाबाश बताओ बेटे, इस बार आपको बताना चाहिए। टॉप पोजीशन पर जाकर क्या होगा? आई वांट द ऑप्शन फ्रॉम यू पीपल। इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी नीड नॉट बी जीरो, एनी ऑफ दीज। क्या आएगा फोर्थ क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन का क्या है? आप कहोगे फोर्थ ऑप्शन का बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। जानते हो क्यों? ध्यान से सुनो अब क्यों। अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी यहां पर जाते 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 जीरो होगी, मान लो जीरो होगी, इतना स्लो फेंका हमने, एयर रेजिस्टेंस की वजह से जीरो होगी, तो वो बॉडी यहां पर ऐसे गिर जाएगी, वो गिर जाएगी बॉडी। अगर वो बॉडी जीरो जीरो नहीं आएगी, वेलोसिटी नॉट इक्वल टू जीरो, तब वो वेलोसिटी आगे फॉरवर्ड होएगी। अब देखो बी ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी नीड नॉट बी जीरो। ठीक है, अगर कोई बॉडी मैंने इतनी स्लो फेंकी, फुटबॉल को बहुत स्लो फेंका और वो टॉप पर गई बच्चे, टॉप पर गई, तो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कर पाएगी, या अगर कर भी पाएगी तो वो इस ट्रैक को फॉलो नहीं कर पाएगी, थोड़ा इधर को गिर जाएगी या कैसे। तो आप कहोगे टॉप के ऊपर जाकर वेलोसिटी जीरो नहीं होती, हालांकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, जबकि बॉडी प्रोजेक्टाइल में जाती है तो टॉप पोजीशन पर यहाँ टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है, अलोंग दी टेंजेंट वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहती है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती। ओके, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। पांचवे क्वेश्चन में आओ, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाता हूं अपने बच्चों को। कह रहा है मैंने यहां पर u वेलोसिटी से फेंका किसी बॉडी को और ये एंगल है थीटा। ठीक है, अब वो कहता है आप सभी को पता है कि ये बॉडी जब गिरेगी जाके तो इतनी दूर जाके गिरेगी, राइट? ये कैपिटल आर इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब वो हमसे क्वेश्चन करता है कि अगर मैं u वेलोसिटी को तो उतना ही रखूं, लेकिन थीटा को चेंज कर दूं, थीटा को चेंज कर दूं। हमने पूछा कहां से कहां चेंज करोगे? कहता मैं 0 डिग्री से 90 डिग्री चेंज करूं तो बताओ। हमने कहा भाई अगर तुम 0 डिग्री तो चेंज कर दोगे, तब तुम्हारा ये एरो इधर को ना जाकर जमीन के ग्राउंड ही पैरेलल ही जाएगा, तब तो तुम्हारा उधर को जाएगा बॉडी। अगर 90 डिग्री चेंज करोगे तो ये बॉडी को ऊपर को फेंकना पड़ेगा। कहता है यस, जब मैं इतना एंगल चेंज करूंगा धीरे धीरे, इस आर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले 90 डिग्री लेते हैं। कोई बच्चा बोलेगा सर 90 डिग्री अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रखना है तो उसको बॉडी जमीन से बिल्कुल वर्टिकली फेंकनी पड़ेगी। मैंने कहा यस। तो बच्चा कहता है सर अगर वर्टिकली फेंकेंगे तो वर्टिकली गिर जाएगी नीचे को, जिधर को जाएगी उसी जगह पर आके गिर जाएगी, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करना। मैंने कहा यस। कहता है बच्चा कहता है सर फिर तो फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं, इस केस में तो फिर हॉरिजॉन्टल रेंज जीरो आ जाएगी। आई सेड यस, जब बॉडी 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो वहीं पर वापस आ जाएगी और हॉरिजॉन्टल रेंज जीरो आएगी। अगर 0 डिग्री पर फेंकें तो बॉडी को जमीन के पैरेलल फेंकना पड़ेगा,
जमीन के पैरेलल फेंकने से ये आर मैक्सिमम होएगी। इसका मतलब जितना जितना ये एंगल बढ़ता जाता है, आर कम होता जाता है और 90 डिग्री पर जाके आर की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। अब ऑप्शन चूज करो, रीड दी ऑप्शंस। कौन से ऑप्शन को पिक करोगे बताओ। देखो, आपको एक बार मैंने कराया था ना, जब प्रोजेक्टाइल का मोशन कराया था नीरज चोपड़ा की एग्जांपल लेकर, कि अगर ये एंगल 45 डिग्री है, मैंने आपको बताया था, तब नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो मैक्सिमम दूरी पर गिरेगा जाकर। तो आप कहोगे सर, जब तक ये थीटा 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक जाएगा, बढ़ेगा, तब तक तो आर भी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही आपका एंगल 45 डिग्री से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये आर कम होना शुरू हो जाएगी। अब एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर आप कैसे कह सकते हो 45 डिग्री पर ही नीरज चोपड़ा अपने जेवलिन थ्रो को मैक्सिमम दूरी पर फेंक सकेगा, आपके पास क्या प्रूफ है? तो मैं उसको ये बताऊंगा, ध्यान से सुनो। मैं कहूंगा, बेटे क्या टीचर ने आपको आर का फार्मूला ये करवाया था थोड़ी देर पहले? बच्चा कहेगा हाँ जी सर करवाया था। फिर मैं उसको बोलूंगा कि बेटे इस फार्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और 5 को लिख दिया मैंने ग्रेविटी अपॉन 2। क्यों लिखा? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है ना, अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, तो 2 घूम के ऊपर चला गया, तो ये बन गया 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ग्रेविटी। तो इसके बाद मैंने बच्चे को बोला कि बेटे इसके बाद हम इन तीन चीजों को मिक्स करते हैं, 2 को, साइन थीटा को, कॉस थीटा को। एक मैथ का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैथ का फार्मूला होता है बच्चे, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो जब 2 भी पढ़ा है, साइन भी पढ़ा है और कॉस भी पढ़ा है, इन तीनों को बंद करके मैं ये लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। अब बच्चा कहेगा सर आपका यू स्क्वायर भी तो पढ़ा है, तो मैंने कहा ये लिख दिया यू स्क्वायर। बच्चा बोलेगा सर ग्रेविटी भी तो पढ़ा है, मैंने कहा ये भी लिख दिया। अब यहां पर फिर से बच्चा बोलेगा सर 45 डिग्री वाली बात तो कहीं नहीं आई अभी भी, 45 डिग्री पर आर मैक्सिमम होया, वो प्रूफ दो हमें। तो मैं उसको फिर थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि बेटे देखो 45 डिग्री पर कैसे मैक्सिमम होएगा, मैं अभी आपको बताता हूं। तब मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे तुम जरा दोबारा से इस फार्मूले को देखो, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, नीचे ग्रेविटी, और यहां साइन थीटा, साइन 2 थीटा। मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटा इतना तो तुम मानते हो कि यू हमारे हाथ में नहीं है, वो तो गिवन होएगा पेपर में, कितनी वेलोसिटी से नीरज चोपड़ा ने थ्रो करा यू वेलोसिटी। बच्चा कहता है यस कांस्टेंट। मैं कहूंगा बेटे ग्रेविटी भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी 9.8 होती है। बच्चा एग्रीड। मैं कहूंगा फिर आर को मैक्सिमम करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है कि हम साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें। For R to be maximum, sin 2 theta should be maximum। और सभी बच्चे को पता है साइन ऑफ एनी एंगल हमेशा 1 मैक्सिमम होती है वैल्यू। साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशो मैथ में किसी भी एंगल का साइन जो होता है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम ही होएगा या बराबर होएगा। अब बच्चे को पूछूंगा बेटे साइन 1 होता कहाँ है? समझदार बच्चा बोलेगा सर साइन 90 पे 1 होता है। साइन 90 पे 1 होता है तो दोनों तरफ साइन कट कर दिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, 2 को नीचे ले जाओ, तो थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। तो आर के मैक्सिमम होने के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का 45 डिग्री होना जरूरी। आगे समझ? तो आप लोग भी अब बिल्कुल जवान बच्चे हो, अगर आप शॉर्ट पुट की तैयारी करना चाहते हो, डिस्कस थ्रो की करना चाहते हो, जेवलिन थ्रो की करना चाहते हो, फुटबॉल फुटबॉल बास्केटबॉल में आप दूर से बैली करना चाहते हो, तो कोशिश करा करो कि आपका थ्रो जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए। अगर आपने ये प्रैक्टिस करी तो बड़ी दूर दूर तक जाएगा।
एक बच्चा होता था, उसकी हाइट थी 6 फुट किसी स्कूल में, तो मैंने उसको फुटबॉल बास्केटबॉल में मैं ये बता दिया, और वो बच्चा खाली टाइम में प्रैक्टिस करने लग गया। बेटे आप हैरान रह जाओगे, वो बच्चा थोड़ा मजबूत भी था शरीर से, वो बास्केटबॉल के एक किनारे से, ग्राउंड के एक किनारे पर खड़ा होकर दूसरे किनारे पर बॉलिंग कर देता था, अंदर टक। प्रैक्टिस की जरूरत है, जस्ट 45 डिग्री पर आपने कोशिश करनी है। ओके, कभी कभी रिसेस के टाइम पे प्रैक्टिस किया करो। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। लेट्स, पांचवें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन आएगा। ओके, नोट कर लो। लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने बच्चों को अब तक समझ आ गया, प्लीज वेव योर हैंड, प्लीज वेव योर हैंड, गिव एन इंडिकेशन। ओके, शाबाश। लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बेटे, keeping the velocity of the projectile constant, the angle of projection can be increased from 0 to degree. The horizontal height of the projectile. अब हॉरिजॉन्टल हाइट पे आ गया क्वेश्चन। हॉरिजॉन्टल हाइट पे है बेटे इस बार, ना कि वर्टिकल हाइट के ऊपर। तो सीधी बात है बेटे, अगर कोई बॉडी को ग्राउंड से हम बिल्कुल ऐसे फेंक देंगे, तभी तो हॉरिजॉन्टल हाइट मैक्सिमम होएगी। इसका मतलब है थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री होना चाहिए। जब ये 90 डिग्री होएगा, तो हमारा जो वर्टिकल रेंज है, हाइट मैक्सिमम हो जाएगा, और उस वक्त आर 0 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वर्टिकल हाइट के ऊपर है, तो सिक्स क्वेश्चन का ए ऑप्शन हुआ। देखो एक बार पढ़ के बेटे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखो, 7th क्वेश्चन है, ए स्टोन इज जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन along the horizontal track with uniform speed. पाथ ऑफ द स्टोन कैसे होगा? थर्ड ऑप्शन है बेटे इसका, थर्ड ऑप्शन, पाथ ऑफ द ऑप्शन। देखो, अगर किसी ट्रेन में से ऐसे पत्थर फेंका, जो तो लड़का अंदर बैठा ट्रेन के, उसको तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता दिखेगा पत्थर। जो बाहर खड़ा हुआ देख रहा है, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में दिखेगा। तो 7th क्वेश्चन का सी पार्ट ट्रू है। ओके, 8th क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर टू ट्रेन्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली P from the train A, the path of the ball will be। 8th क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है। देखो बेटे, अगर दो ट्रेनें पैरेलल जा रही हैं, बिल्कुल दो ट्रेनें पैरेलल, तो एक जगह से दूसरी जगह पर बॉल फेंकी, तो ये तो इनको स्ट्रेट लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन। अगर दोनों बंदे ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो उनको तो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी, क्योंकि उनका आपस में रिलेटिव मोशन नहीं है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एट इक्वल वेलोसिटी। तो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर उनका आपस में गैप बढ़ नहीं रहा, घट नहीं रहा, उनको रेस्ट पे बोलेंगे। तो ऐसे मोशन में उनको स्ट्रेट लाइन में बॉडी दिखेगी। तो ये सारी बातें ट्रू आती हैं। 8th का आपका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। Two bullets are fired simultaneously horizontal with equal velocities with the same place. कौन सी बुलेट जमीन को पहले ग्राउंड को हिट करेगी? कौन सी बुलेट? ये क्या होगा? ये तो सिंपल है। देखो, कहता एक जगह है, यहां से दो बुलेट्स को इकट्ठे फायर करा, वो भी इकट्ठी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो वेरी सिंपल, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगी, और ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगी। तो दोनों ही अगर एक ही पॉइंट से थ्रो करी है, तो दोनों ही एक ही पॉइंट पे इकट्ठी गिरेगी। सेम टाइम लगेगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ बच्चे, 10, 10 पे आओ। 10 पे क्या कह रहा है? ए ट्रेन इज मूविंग फास्ट, ठीक है बेटे, ड्यू टू ईस्ट, ए कार इज मूविंग नॉर्थ
with equal speeds. A passenger in the train finds the car moving in. देखो ये ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो अपने बच्चों को चारों डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ के हमेशा राइट हैंड साइड पर ईस्ट और वेस्ट बनता है। इन्हीं चार अल्फाबेट को मिलाकर इंग्लिश का वर्ड न्यूज बनता है। न्यूज मैंने चारों दिशाओं की खबरें, न्यूज। ओके, अब देखो वो क्या कह रहा है। एक एक ट्रेन है, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, गाड़ी है या ट्रेन है जो भी, ये जा रही है, सॉरी ये जा रही है ईस्ट की तरफ। ओके, ए ट्रेन इज मूविंग ड्यू टू ईस्ट, ए कार इज मूविंग नॉर्थ, और ट्रेन इधर जा रही है और कार जा रही है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब इस बंदे को कार, अब कहते पैसेंजर इन द ट्रेन फाइंड्स द कार। इस बस ट्रेन के अंदर बैठे हुए लड़के को कार किधर को जाती हुई दिखेगी। ध्यान से सुनना, अब कार किधर को जाती हुई दिखेगी। देखो वो जो ट्रेन में ऑब्जर्वर बैठा है ना, ये येलो कलर वाला, हालांकि ये खुद मूव कर रहा है, पर मानता क्या है अपने आप को, मैं नहीं मूव कर रहा हूं। पर वो कार से दूर तो हट रहा है ना, इनडायरेक्टली वो ये सोचता है कि कार मेरे से पीछे हट रही है। तो उस आप खुद के आगे जाने की वजह से उसको इस कार की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर को दिखाई देता है अपोजिट डायरेक्शन में, और कार असली में तो नॉर्थ की तरफ जा ही रही होती। फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। ट्रेन में बैठा हुआ लड़का जब कार को देखता है, तो वो ट्रेन में बैठा हुआ लड़का खुद को ये मानता है कि मैं नहीं मूव करता, पर फिर भी उसको कार अपने से दूर हटती हुई दिख रही है। तो क्यों हट रही है? रियलिटी में ट्रेन आगे जा रही है, पर ऑब्जर्वर अपने आप को मानता है मैं रेस्ट पे रहूं, तो उसको लगता है ट्रेन इधर को हट रही है पीछे। पर एक वेलोसिटी तो ये होगी, और कार की अपनी वेलोसिटी तो नॉर्थ की तरफ असली वाली वेलोसिटी है ही है। तो दोनों डायरेक्शंस में मिलाकर इस बंदे को दोनों दोनों वेलोसिटीज का जो इकट्ठा असर आएगा, वो ये होएगा जिधर को टीचर व्हाइट कलर से दिखा रहा है, ऐसे इधर को जाती हुई कार दिखेगी इस ट्रेन के ऑब्जर्वर को। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है यहां से? ये नॉर्थ वेस्ट। आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हुए दिखेगी उस बंदे को, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करेंगे हम 10th क्वेश्चन का? शाबाश, कौन सी ऑप्शन होगी? बोलो बेटे, 10th की कौन सी ऑप्शन होगी? सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। दो तीन मिनट, ठीक है। At the highest point of its path, a projectile has only vertical component of velocity. गलत भाई, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर होती है, वर्टिकल कंपोनेंट तो जीरो हो जाता है, सारे का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, क्योंकि टेंजेंट उधर कोई ड्रा करी जाएगी ना। तो असर्शन हो गया गलत, क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट ए प्रोजेक्टाइल हैज ओनली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एट द हाईएस्ट पॉइंट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। रीजन ठीक है बेटे, रीजन ठीक है कि हॉरिजॉन्टल टॉप मोस्ट पॉइंट पर, क्योंकि टेंजेंट एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रा करी जा सकती है, और जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट जब जीरो होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट को जीरो लेंगे, हॉरिजॉन्टल को नॉन जीरो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का असर्शन रीजन। शाबाश, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन रीजन देखो बेटे एक बार, क्या है? 12th क्वेश्चन में है द पाथ फॉलोड बाय वन प्रोजेक्टाइल एज ऑब्जर्व्ड बाय द अदर। हमेशा याद रखना है, जब एक बॉडी ऐसे मूव कर रही हो और दूसरी बॉडी ऐसे मूव कर रही हो, दोनों प्रोजेक्टाइल हो, तो इस बॉडी से उस बॉडी को देखा जाए तो हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखता है। ये आपने फैक्ट याद करना है। आप कोई बच्चा पूछ सकता है सर स्ट्रेट लाइन क्यों दिखता है, गुलाई में क्यों नहीं दिखता? तो उसके लिए एक लंबी चौड़ी डेरिवेशन करनी पड़ती है, वो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे अभी। बस आपने याद रखना है, when one projectile is observed from the other projectile, they appear to move in straight line.
लेकिन इन दोनों बंदों को जमीन पे खड़ा हुआ बंदा अगर देखेगा तो उसको ये पैराबोलिक पाथ ही दिखेगा। ओके, तो असर्शन इसका सही है। रीजन क्या है? द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू प्रोजेक्टाइल एट अ गिवन प्लेस डज नॉट चेंज विद द टाइम। तो इसका जो रीजन है वो भी हमारा सही हो गया। ठीक है, 12th हो गया हमारा बेटे। 12th जो है हमारा क्वेश्चन वो भी सही होगा। ठीक है, अभी एक केस स्टडी पे आ जाओ फटाफट। नीरज चोपड़ा के ऊपर केस स्टडी अब पढ़ना जरा, दो चार लाइनें हैं। नीरज चोपड़ा ओनली गोल्ड मेडलिस्ट इन द ओलंपिक गेम्स वांट्स टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट जेवलिन थ्रोअर। ही हैज नॉट बीन ए साइंस स्टूडेंट। You are his assistant coach to make him understand his technical questions about the planar motion. After detailed mutual discussion between you as a coach and Neeraj as your trainee, Mr. Chopra still remains skeptical about few things. He puts a query to the assertion and reason form. Please answer his queries. तो आप नीरज चोपड़ा के ट्रेनर हो, नीरज चोपड़ा साइंस स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो आप उसको कैसे कैसे बताओगे? देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी मैक्सिमम। नीरज चोपड़ा आपसे कंफर्म करना चाहता है कि अगर मैं 45 डिग्री से जेवलिन थ्रो फेंकूंगा तो मैक्सिमम दूरी पर गिरेगा। हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे? यस जल्दी बोलो, हाँ या नो? यस। तो क्वेश्चन नंबर 13 के असर्शन के लिए आप यस बोलोगे। रीजन फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा शुड बी इक्वल टू 1। ये मैंने अभी अभी आपको प्रूफ दिया था ना कि 45 डिग्री कैसे है, तो वहां साइन थीटा को मैंने 1 के बराबर रखा था। देखो रीजन में वही दे रहा है, फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो रीजन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ बेटे। 14, the time taken by the bomb to reach the ground from moving aeroplane depends upon the height of the aeroplane। कहता ध्यान से सुनो, अगर एरोप्लेन से हमने बम फेंका है पाकिस्तान के ऊपर, तो बम कहाँ गिरेगा यहाँ पर, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि एरोप्लेन की हाइट क्या है। वो तो है ही है बेटे, जितनी ज्यादा हाइट से एरोप्लेन बम फेंकेगा उतना ही उसको गिरने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि उतनी ही देर में वो हवा में रहेगा। बम जमीन पे टकराने से पहले पहले ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर हम इस एच को इंक्रीज कर देंगे तो टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, रीजन horizontal component of the velocity bomb remains constant and vertical component of the velocity does not change with the time। तो असर्शन भी सही है इसका, रीजन भी सही है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, बस लास्ट के दो क्वेश्चन है बेटे, थोड़ा सा मैंने फास्ट कराया ताकि आपकी असाइनमेंट खत्म हो जाए, वरना आपकी छुट्टियां हो जाएंगी ना। Velocity and acceleration are neither parallel nor anti-parallel, but acceleration is constant. The trajectory of the particle is parabolic। हाँ, velocity and acceleration है, बिल्कुल सही। देखो पैराबोलिक पाथ ऐसे था, देखो, और एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड था। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू जी था, लेकिन वेलोसिटी जो थी, कभी वेलोसिटी तो एट एनी मोमेंट अलोंग टेंजेंट देनी पड़ती। अगर बॉडी यहाँ है तो वेलोसिटी इधर को है, अगर बॉडी यहाँ है तो वेलोसिटी इधर को, अगर बॉडी टॉप पे है तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, अगर बॉडी इधर है तो ऐसे, अगर बॉडी इधर है तो ऐसे। तो अलग अलग पॉइंटों पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। तो ये वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन के ना तो पैरेलल है और ना पैरेलल कहीं भी नहीं है इसके, ना नॉन पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा इसमें रीजन दे रखा है, देखो, राइट बेटे। तो 15 का असर्शन सही हो गया। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, काइनेटिक्स फार्मूलाज आर एप्लीकेबल, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, if the particle has initial velocity along x-axis and acceleration is constant and directed y, the speed increases, speed does not depend upon acceleration। देखो बेटे, जब बॉडी यहाँ पर है तब बॉडी, देखो उसको एक्सेलरेशन नीचे खींच रही है, बॉडी यहाँ पर है अभी भी खींच रही है, लेकिन बॉडी अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पर आ गया तो एक्सेलरेशन की फेवर में आ गया। तो वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट।
वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, अलग अलग मौकों पर अलग अलग होगी, राइट। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी क्योंकि ये तो सारी जगह पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही होगी, ये कांस्टेंट होगी, ठीक है। स्पीड डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सेलरेशन ना, कैसे नहीं भाई, क्योंकि फार्मूला देखा आपने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देखो ये चीज डिपेंड तो होगी एक्सेलरेशन के ऊपर, ओके। तो जब डिपेंड हो गया तो इसका मतलब है रीजन इसका गलत हो गया और असर्शन सही है। बेटे आप ना अच्छे से पढ़ना छुट्टियों में, और आप अच्छे से अपने डाउट निकाल के लाना। कहाँ तक पढ़ना है मैं बताता हूँ आपको। आपने यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, और मोशन इन प्लेन पढ़ना है, प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, सर्कुलर मोशन पढ़ना है। ये सारा आप अपनी तरफ से रिवीजन करके आना, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा अच्छे से, ठीक है। Bye, sir.